back. I need to say something that these kind of things which we are going to organize for you is the sessions, online ophthalmology sessions. These sessions are very much, I think so that these are going to be very much useful for you all, because those who are starting their career in optometry are required to go through with these sessions, because these will help you with the starting progression of optometry. So if you want to apply, or if you want to see the thing very basically from optometry, then you should apply for these sessions, which are the paid one. Per session is only costing you around 100 rupees from Indian currency. If you are from other countries, then we should discuss with that first, and I should add you in my WhatsApp group. So kindly message me on the mail ID. So on mail id you should go through with my some replies. So that replies consist of my number. That number you should reply on my WhatsApp. So kindly go through with these sessions. These are getting very much interesting and very much useful for you. So anatomy second part, right? So we have understood in previous class about till anterior chamber. Okay, now the posterior chamber. Posterior chamber is the is the front part of the eye, you can say that. And posterior chamber is having a space filled with aqueous humor in which the ciliary bodies are also attached. ठीक है, जिस जगह पे आप लोगों का पोस्टीरियर चैम्बर वो चैम्बर है जहाँ पे आप लोगों का फ्रंट चैम्बर आता है, जो आइस का फ्रंट चैम्बर है वो आता है, इसमें आपका एक्वस ह्यूमर फिल्ड रहता है और इसमें सिलियरी प्रोसेसेस अटैच्ड रहती हैं जिसके थ्रू एक्वस ह्यूमर बनता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर इज 0.06 cubic centimeter and it is bounded in front by posterior surface of iris and anterior surface of lens, zonules of Zin's from behind. I have already told you, जैसे कि बता दिया उस चीज के बारे में कि फ्रंट पार्ट जो होता है हमारी आई का उसमें हम पोस्टीरियर चैम्बर को मार्क करते हैं और वो आइरिस का पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस के बिहाफ पे फ्रंट सरफेस दिखाई देता है पोस्टीरियर चैम्बर का, और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस मतलब बैक पोर्शन ऑफ लेंस के साथ उसका पोस्टीरियर चैम्बर अटैच्ड होता है। समझ रहे हो इस बात को? कि मान लो हमारी आई है, फ्रंट में लेंस है, ठीक है, लेंस का जो बैक साइड पोर्शन है वो पोस्टीरियर चैम्बर से अटैच्ड रहता है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस है, आइरिस का जो फ्रंट सरफेस है वो आपका बाउंड करता है फ्रंट सरफेस ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर को। ठीक है, एंड जोन्यूल्स ऑफ जिन्स फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब है कि पीछे से जोन्यूल्स ऑफ जिन्स रहते हैं। जोन्यूल्स ऑफ जिन्स ज्यादातर सिलियरी बॉडी के पास में होते हैं। ठीक है, it is bounded laterally by ciliary processes of the ciliary body. ये बैक साइड थोड़ी थोड़ी टाइम मतलब लेटरली कुछ कुछ चीजें इसकी सिलियरी प्रोसेसेस के साथ अटैच रहती हैं जो कि सिलियरी बॉडी के साथ मतलब सिलियरी प्रोसेसेस जो होती हैं वो सिलियरी बॉडी का पार्ट होती हैं। Okay, as I have already told you about ciliary body parts in previous class. सिलियरी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सिलियरी प्रोसेसेस होती हैं, जोन्यूल्स होते हैं, फिलामेंट्स होती हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। तो एपिथीलियम होता है, सिलियरी एपिथीलियम। तो दीज आर द थिंग्स कंसिडर्ड इन सिलियरी बॉडी। नाउ द यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि यूवियल ट्रैक्ट में तीन चीजें आती हैं, सिलियरी बॉडी, कोरॉइड, आइरिस। These three things considered under uveal tract. Iris जो होता है, it's a most anterior part lying in front of crystalline lens and behind the cornea. This means it is the front part, or you can say the front of crystalline lens and behind the cornea. Front of crystalline lens यानी कि anterior surface of lens. It's not the posterior surface, it's the anterior surface of lens.
फ्रंट पार्ट की बात हो रही है तो एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, बिहाइंड द कॉर्निया यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। अंडरस्टूड? हाँ जी बोलो। लेंस के आगे क्या होता है? हाँ हाँ, यूवीएल ट्रैक्ट। हाँ हाँ, यूवीएल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट इज नॉट दैट थिंग कि ट्रैक बन रहा है वहां पे। ट्रैक है कि ये तीन पार्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ है। आइरिस कहाँ है, सिलियरी बॉडी कहाँ है, कोरोइड कहाँ है। आइरिस कहाँ पे है? आइरिस इज लाइंग एंटीरियर पार्ट। आइरिस का जो एंटीरियर पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है, वो फ्रंट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस एंड बिहाइंड द कॉर्निया पाया जाता है। समझे? ये बोल रहे हैं वो, ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे कोई ट्रैक निकल रहा है, ट्रैक नहीं निकल रहा। यूवीएल ट्रैक्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि these three things involve the uvea. These three things are considered as uvea. We can say iris, choroid and ciliary body as a uvea. ओके, इसलिए इसको यूवियल ट्रैक बोला जाता है तीनों चीजों को। ठीक है, एनी डाउट? ओके, so it is circular in shape with a central opening called pupil, and there is a opening in this iris also जिसको हम pupil बोलते हैं, like a diaphragm of camera. It's a peripherally attached to the middle the anterior surface of ciliary body. ये periphery में attach रहता है ciliary body से। It means how it works. हाँ जी अजंता बोलिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? सोनी हो रहा है? अजन हाँ अजन हाँ हाँ, ओके। सो इट इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब क्या था पूरे चीज का कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका आइरिस है वो एक्चुअल में फ्रंट सरफेस ऑफ लेंस के पास में और कॉर्निया के बैक सरफेस बिहाइंड द कॉर्निया बनता है। ठीक है, इट इज सर्कुलर इन शेप विद अ सेंट्रल ओपनिंग। इनके बीच में एक प्यूपल होता है। प्यूपिल के साइड्स में पेरिफेरी जो होती हैं, अटैच जो होती हैं, आइरिस की जो पेरिफेरी होती है वो अटैच होती है जोन्यूल्स से। जोन्यूल्स किसके? सिलेरी बॉडी के, एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलेरी बॉडी। जो सिलेरी बॉडी का एंटीरियर सरफेस होगा उससे अटैच रहता है। फंक्शन ऑफ आइरिस क्या क्या रहता है ये जरूरी होता है, आइरिस के फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। आइरिस का मेन फंक्शन ये होता है कि इसका जो प्यूपिल है वो रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ, कितना लाइट अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में जाना चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है प्यूपिल के, कि आपका आई का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें आपको पता चलता है कि लाइट कितना एंटर होना चाहिए, या लाइट ज्यादा, क्योंकि लाइट तो हर जगह है बट कितना आई झेल सकता है उतना ही प्यूपिल उसको रेगुलेट करता है। तो वो कौन सी चीज है? प्यूपिल रेगुलेट करता है। बाय विच एक्शंस? डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन। दीज टू एक्शंस आर रिक्वायर्ड बाय प्यूपिल। ठीक है, या तो डायलेट करके, पुतली फैल के, या फिर कंस्ट्रिक्ट करके, सिकुड़ के। ठीक है, और इसमें एंड द स्पिंक्टर प्यूपिले मसल्स का भी बहुत अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन वही करते हैं, स्पिंक्टर प्यूपिले मसल्स। यू हैव टू रिमाइंड दिस। तीसरी चीज, ब्लड सप्लाई आइरिस में, यही ब्लड सप्लाई आइरिस करता है। इट इज फ्रॉम द माइनर एंड मेजर आर्टेरियल सर्कल ऑफ आइरिस। आर्टेरियल का मतलब है आर्टरीज के थ्रू आइरिस में, आइरिस की आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है आइरिस में। नर्व सप्लाई किससे होती है? स्पिंक्टर प्यूपिले से, जो कि ऑक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व्स हैं। डायलेटर प्यूपिले से नर्व फ्रॉम सर्वाइकल सिंपैथेटिक सेंसरी नेसोसेलरी नर्व, अ ब्रांच ऑफ फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व। व्हाट डज दीज थ्री मीन्स? नर्व सप्लाई, आपका आइरिस का नर्व सप्लाई क्या है? जब भी आप एनाटॉमी पढ़ते हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे आपको सारी चीजों का पता हो, क्या फंक्शन है उस पार्ट का, उसका ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई के बारे में नहीं पता होगा उस पार्ट के, तो आपको
आंसर्स आपको आंसर्स लिखने नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो ब्लड सप्लाई होता है वो आपका आर्टरीज के थ्रू होता है, ठीक है। आइरिस आइरिस में आर्टरीज के थ्रू होता है, और नर्व सप्लाई जो होता है वो तीन मसल्स के थ्रू होता है, तीन नर्व्स के थ्रू होता है। फर्स्ट तो स्पिंक्टर प्यूपिले जो है हमारा, जो स्पिंक्टर प्यूपिले मसल है, उसमें किसके थ्रू होता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू। डायलेटर प्यूपिले जो है उसमें किसके थ्रू होता है, नर्व्स थ्रू सर्वाइकल सिंपैथेटिक। सेंसरी में होता है आपका नेसोसिलरी नर्व, जो कि ब्रांच ऑफ फर्स्ट ट्राइजेमिनल नर्व है। सिर्फ ट्राइजेमिनल नर्व नहीं है, ब्रांच ऑफ फर्स्ट ट्राइजेमिनल नर्व है। साथ में फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी है। इनके ब्रांच को, हाँ जी, ट्राइजेमिनल का कोई मतलब नहीं है, इट्स अ नेम ऑफ नर्व। जो हमारी थर्ड नर्व होती है उसका नाम ट्राइजेमिनल नर्व होता है, ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। तो इसमें जो आपका ब्रांच है, इसका जो ब्रांच है उसको आपने इसमें कंसिडर किया है। जो सेंसरी पार्ट ऑफ आइरिस है ना, उसको ये वाली नर्व अपना नर्व सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई भी जरूरी है ना, अदरवाइज हमें कोऑर्डिनेशंस नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे ना, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कितना अमाउंट हमारे, क्योंकि सारा काम कौन करता है, सारा काम हमारा ब्रेन करता है। एट दी एंड ब्रेन तक मैसेज कौन पहुंचाता है, नर्व्स पहुंचाते हैं। तो नर्व्स का भी जानना जरूरी है, ठीक है। एनी क्वेश्चन सोनी? श्योर? कोई भी डाउट हो पूछ लो फिर से, कोई बात नहीं। नर्व सप्लाई फिर से, नर्व सप्लाई एक्चुअल में जो आइरिस है उसमें तीन तरीके की चीजों को नर्व सप्लाई की जाती है। सबसे पहले तो स्पिंक्टर प्यूपिले वो प्यूपिले है जिसमें प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है। तो अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो कंस्ट्रिक्ट किस टाइम करना है, वो मैसेज भी तो किसी ना किसी नर्व को देना होगा ना ब्रेन तक। तो वो कौन सी नर्व वर्क करती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व करती है, नाम है ये नर्व्स के, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व है हमारी। देयर आर 10 cranial nerve, 10 cranial nerve होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं। आई विल शेयर दिस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, कि 10 cranial nerve के क्या क्या नाम है, ताकि वो इजीली आपको याद हो जाए। स्टिल आईज में बहुत ऐसी कम नर्व्स होती हैं जिनका यूज होता है, मतलब आईज में हर नर्व का यूज नहीं कर सकते। जैसे फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व का आईज में प्रॉपर यूज नहीं होता, क्योंकि फेशियल नर्व फेस पे हेल्प करता है, फेस का मैसेज पहुंचाने में, या फेस के लिए यूज होता है। तो ट्राइजेमिनल नर्व या फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व, दीज नर्व्स कंसिडर्ड अंडर आई नर्व्स। सो स्पिंक्टर प्यूपिले पार्ट को कौन करता है नर्व सप्लाई, ऑक्यूलोमोटर नर्व। डायलेटर प्यूपिले को कौन करता है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व। सेंसरी पार्ट ऑफ आइरिस को कौन करता है, नेसोसिलियरी नर्व। नेसोसिलियरी नर्व्स करती हैं, जिसमें से नेसोसिलियरी नर्व में कौन कौन सी नर्व्स आ सकती हैं, ट्राइजेमिनल और फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी, वो होती है ट्राइजेमिनल नर्व। सॉरी आई सेड थर्ड क्रेनियल नर्व, इट्स अ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। सो फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व, जिसमें आपका फर्स्ट ब्रांच जो होता है, पहली ब्रांच, वो इस चीज को नर्व सप्लाई करती है, सेंसरी पार्ट ऑफ आइरिस को। Is it understandable by you all, or any doubts? हाँ 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 हाँ। और डायलेटर तो तुम्हें पता है, डायलेट करना, है ना। एनी अदर डाउट? अजंता? ओके। सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी सिलेरी बॉडी वैसे मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट फिर से बता देती हूँ। सिलेरी बॉडी एक इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक है, यानी कि जो तीन पार्ट्स हैं, आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोरोइड। सो सिलेरी बॉडी उसका मिडिल पार्ट है, बीच में आता है। अगर हम आगे से देखें तो आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड देन कोरोइड। स्टिल पीछे से देखें तो कोरोइड,
ciliary body and iris like this. So it's an intermediate part. It extends from ora serrata to the root of iris. एज आई हैव टोल्ड यू कि बैक साइड से देखा जाए तो कोरोइड पहले आएगा, फ्रंट साइड से देखा जाए तो आइरिस पहले आएगा, बट सिलियरी बॉडी बीच में ही आएगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरा सेरेटा इज अ पार्ट ऑफ पता है किसी को ऑरा सेरेटा किस चीज का पार्ट है? ऑप्टिक नर्व. पता है हमारी आई में ऑप्टिक नर्व बैक साइड से जाती है, तो ऑप्टिक, हाँ हाँ हाँ, तो वहां पर ही आपका ऑरा सेरेटा पार्ट भी आता है. अगर आप ऑप्टिक नर्व का डायग्राम देखोगे तो वहां पे आपको ऑरा सेरेटा का पार्ट आता है ऑप्टिक चियाज्मा के बाद. तो उन चीजों में मतलब ऑरा सेरेटा से आपका ये पार्ट ऑफ कोरोइड वर्क करना शुरू करता है, यानी कि उसी साइड में कोरोइड भी आता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट रूट ऑफ ऑरा सेरेटा टू द that aura serrata to the root of iris where it is attached to scleral spur. जहां पे ये किससे अटैच होते हैं? स्क्लेरल स्पर से. स्क्लेरल स्पर स्क्लेरा का पार्ट है, ताकि ये वहां पे हार्ड पार्ट के साथ अटैच हो सके. ठीक है. सिलियरी बॉडी तो ऑब्वियसली हर जगह मूव करेगा क्योंकि इट्स अ सिलियरी प्रोसेसेस विच हेल्प्स टू, जो कि हेल्प करता है एक्वस ह्यूमर को फिल्टर होने में भी, मतलब उसको आगे पहुंचाने में, ट्रांसफर करने में, क्योंकि सिलियरी बॉडी आर द फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. It's a circular band width of which is 5.9 mm nasally and 6.7 mm temporally. सिलियरी बॉडी एक बैंड की तरह है. अगर तुम आई का डायग्राम देखोगे तो फ्रंट पार्ट का आई का डायग्राम कुछ साइड वेज जो होते हैं उस साइड से थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, बैंड की तरह रहता है. तो उसका विथ जो होता है वो 5.9 होता है और नेजली, और 6.7 होता है टेम्परेली. डू यू नो नेजली और टेम्पोरली? नेजली इज नाक की तरफ, टेम्परेली इज कान की तरफ. ठीक है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू एनाटॉमिकल पार्ट्स. फर्स्ट वन इज पार्स प्लाना. सिलियरी बॉडी के दो पार्ट्स हैं जो आपको प्रॉपरली याद रखने की जरूरत है. फर्स्ट पार्ट इज पार्स प्लाना, सेकंड पार्ट इज पार्स प्लिकाटा. जो पार्स प्लाना है वो थोड़ा